वाली बांध दी तो उसमें कपड़े रखे मुझे Hello. Okay, so good morning, class. Am I audible to all of you? Hello. Am I audible to all of you? हेलो, मेरी आवाज आ रही है सभी को? हेलो, मेरी आवाज आ रही सभी को? सर बहुत स्लो आवाज है आपकी। अच्छा, अभी आ रही है आवाज? अभी जो मैं बोल रहा हूँ? Okay, so I think we all are connected. So now I start with the uh, topic which we have previously discussed. So I'm just sharing a PDF to you, all of you. Just check this. Okay, so सभी लोग कनेक्ट हो जाइए फटाफट। Okay, so I'm sharing a document. Please see this. So last time we have discussed about the third unit, that is multiple access. Okay, so and I have told you that in multiple access scheme, one or two more than two nodes can share the channel at the same time. So it may happen that the packet or the bits may get collide with the another packet or bit. So in this particular scheme we will try to resolve the problem, and we will see in which protocol scheme, multiple access protocol scheme,
uh, how the packets or the bits gets transferred from one place to another place. Clear? So I'm just sharing, just wait. Okay, so I think this is visible to all of you. Yes, sir. Okay, okay. And so I am just zooming this. You can see. Okay, so in this particular topic, we can see that into data link layer is divided into two part: data link control and multiple access resolution. Okay, so in data link control portion of the data link layer, we just control the data that is accessing on the accessing from one side to another side. Okay, we can see that the data is transmitting whenever data arrives on a particular node or any user side, it suddenly transfer to the next node or port immediately. Clear? So in data link control, we just control the link of that data that is transferred from one place to another place. Clear? We just manage the data from one place to another place, and in multiple access resolution, we just try to resolve the multiple user that is accessing the channel at the same time with their packets or their bits. Clear? So so we will see this. So now in this particular multiple access resolution scheme, we will just try to see the category first. Okay, so I think last time I have discussed with this particular category. You all can see this. Is it visible to all of you? Okay. Okay, so we will discuss with the first multiple access protocol, that is random access protocol. मेरी आवाज़ सभी को आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके इफ अगर अगर कोई इशू होगा तो आप बताइएगा, अगर वॉइस में कोई इशू आता है तो प्लीज़ इन्फॉर्म मी, ठीक है? कि अभी मुझे ऐसा नहीं पता चलेगा, आपका रिस्पांस आएगा तभी पता चलेगा कि आवाज़ मेरी क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है. सो काइंडली इन्फॉर्म if any problem arises. ठीक. Okay, so in this particular category, we will discuss first random access protocol, which is divided into Aloha, CSMA, and CSMA CD oblique CSMA CA. Clear? So CSMA CD is what carrier sense multiple access collision detection and collision avoidance. Clear? So first we will start with the Aloha scheme, and you can see there is a term random access. Clear? So we will just try to understand the concept of random access, which I have already told you. Here in this particular scheme, I am just highlighting this particular scheme of random access. uh, Basically the channel, each user access the channel simultaneously. Suppose we have more than one node, that is 2, 3, 4, 5, whatever is that. Clear? So they all are independent to each other and access the channel at the same time. Clear? So there is no authentication in between each node. No one know about the nearby nodes. Clear? So किसी को आसपास के नोड से पता नहीं होता है कि वो कौन क्या कर रहा है, और ना उसको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत है इन रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल. सो
they just get the data from the source and then transmit it to the channel. Clear? They doesn't need for the any type of authentication from the nearby node. Whenever they get the data, they access it to the uh, channel, and then the data get transferred. It may happen most of the time that the data get lost because nobody knows about the nearby nodes. Clear? So whenever data arises on the particular node, so it they may get transferred to the channel. So at the same time, if two nodes or three nodes get the packet and transfer to the channel, so the condition may arise that the data get lost most of the time. So due to the collision of the packet or the information. So we just see that this is the meaning of random access. Clear? So randomly access, all the nodes are randomly access the channel at the same time. So you can see that there are 4 points in the bottom side about the random access. When can the station access the medium? These are the questions which arises in the random access scheme, that कि हमारा station कब access करेगा medium को, and what can the station do if the medium is busy. Medium is exactly two types, idle or busy. Idle means the channel is exactly clear for any particular node, so it can easily transfer the data if the channel is idle in condition. Clear? And another is the channel is busy. So if the channel is busy, then in that case, if any particular node transfer the data randomly, then it may get the chance to collide the data with the another particular node data. Clear? So the data get lost at that time. So these are the two condition, idle and busy condition. Now the third case is, how can the station determine the success or failure of the transmission? Means how the station can determine that the transmission of their particular packet is successful or not. So we need some type of acknowledgement for that. If the acknowledgement is getting successfully, means the packet is transferred successfully. Clear? And the acknowledgement is exactly received by the receiver side to the sender side for that particular packet. Clear? If the acknowledgement is received, it means the packet is transferred successfully, otherwise not. Clear? If anyone have any questions, then they can ask to me in between the lecture. If anyone have any type of doubts. Clear? So kindly ask me if anyone have. Clear? So now, and the fourth case is, what can the station do if there is an access conflict? Means station will what can the station do if any type of conflict in the access of the particular packet? So these are the four questions exactly arises in the random access scheme. Clear? So now move to the next. Okay, so to resolve that particular problem, we have exactly there are four scheme in random access protocol, that is Aloha. Aloha is also categorized in two category, pure Aloha and slotted Aloha. Clear? This is very important question that generally asked in your examination. So we need to focus about that. No. Aloha, what is Aloha? Aloha scheme is exactly the earliest random access method. This was the first initiated by the University of Hawaii in early 1970. Clear? And it was designed for the radio wireless transmission, that is LAN. LAN means local area network. That is exactly we can say the Ethernet cable is the part of the LAN. Clear? But it can be used on any shared medium. Exactly, it was designed for the LAN scheme, but it can use for the any type of shared medium. This type of broadcast communication you can use. Clear?
And it is obviously that there are potential collisions in this arrangement. This medium is shared between the stations. When the station sends data, another stations may attempt to do so at the same time, and the data from the two stations collide and become garbled. Clear? Oh, okay. So in this particular scheme, most of the time, as I have earlier told you, the two or more stations sends the data to the channel at the same time. क्लियर? मतलब दो से ज़्यादा ये स्टेशन हमारे चैनल को एक साथ एक्सेस कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि द डेटा गेट लॉस्ट. क्लियर? So we should aware with these all these things. So in this particular scheme, we have exactly pure Aloha and slotted Aloha. You can see here, if I talk about the diagram, my voice is clear to all of you, na? Is there any issue related to voice? Kindly tell me. If any issue related to my voice, kindly tell me. Is there any issue? No, sir. No, sir. ओके ओके. अभी जो समझा रहा हूँ कुछ समझ में आ रहा है? अभी जो भी मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूँ, is there Yes, any sir. problem? समझ में आ रहा है? ओके. सो देखिए, अलोहा बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है. ये ध्यान रखिएगा, अलोहा से क्वेश्चन जरूर आएगा, मैं बता दे रहा हूँ पहले ही. आपके एग्जाम में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर यूनिट से. जब मैं मतलब हमारे टाइम में भी ये टॉपिक जो है एग्जाम में कवर होता था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आपके कई बार ये गेट में भी क्वेश्चन आया है अलोहा से रिलेटेड, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको ध्यान रखिएगा. अलोहा में आपके दो टर्म्स हैं, प्योर एलोहा एंड स्लॉटेड एलोहा. तो प्योर एलोहा इज एग्जैक्टली द टोटली टाइप ऑफ रैंडम एक्सेस स्कीम. क्लियर? मतलब कि आपके पास जैसे मान लीजिए 4 नोड हैं, ये आपको दिख रहे होंगे नीचे डायग्राम में. ये दीज आर द 4 नोड्स. क्लियर? नोड 1 स्टेशन 2 स्टेशन 3 स्टेशन 4. मैं थोड़ा इसका आपको थोड़ा क्लियर डायग्राम दिखाता हूँ. जस्ट वेट. ये डायग्राम सभी को दिख रहा है? I think ये Yes, थोड़ा sir. क्लियर होगा, ये थोड़ा आपको ज़्यादा क्लियर होगा. So we Yes, have sir. exactly four stations. Clear? These are the stations 1, 2 and 1, 2, 3, 4 on the left side, and this is the time. Clear? This axis is time. Means time के साथ आपका डेटा कैसे कैसे एक्सेस कर रहा है, and these in between there is a channel. Clear? This is the channel. Clear? So we can see that in particular pure Aloha scheme वी हैव फ्रेम 1.2. मीन्स इसका मतलब क्या है? 1.1 का मतलब होता है स्टेशन 1 का फर्स्ट फ्रेम. 1.1 मतलब पहला वन आपका स्टेशन 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है. सेकंड 1.1 जो सेकंड वाला है वो आपका फ्रेम को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो फर्स्ट फ्रेम ऑफ स्टेशन 1. क्लियर? एंड दिस इज 1.2. इसी के जस्ट बगल में आप देख रहे होंगे स्टेशन 1 पे जो दो फ्रेम है, frame 1.2 means this is the another frame of means second frame of station 1. Clear? ऐसे ही आप नीचे भी देख सकते हैं स्टेशन 2 पे फ्रेम 2.1 एंड 2.2 मीन्स स्टेशन 2 का फर्स्ट फ्रेम, स्टेशन 2 का सेकंड फ्रेम. थर्ड पे भी स्टेशन 3 का फर्स्ट फ्रेम, स्टेशन 3 का सेकंड फ्रेम. तो वी हैव multiple means we are having two frames at the same time for each station. Clear? So you can see that there is a highlighted portion in the channel. Clear? You can see that there is a highlighted portion in the channel where you can see that frames are colliding. Clear? Like frame 1.2, that some portion of frame 1.2 and the complete portion of frame 2.1 and some portion of frame 3.1 and the complete portion of frame 4.1 are colliding at the same time. This may happen just because of the in pure Aloha scheme the stations are randomly transmitting to randomly transmitting the data to the what, to the channel. Clear? This, that's why it may happen. So, and you should know one more thing: if the packet is colliding from either side or left side or right side, not complete packet gets collide. So in that particular case still the data may get lost. Clear?
means if the packets are not completely transferred without any hindrance or collision, then then you can say the collision occurs. Clear? Means your packet should you, if suppose the packet have 5 bits, clear, or 7 bits, suppose 7 bits, and one of the bits is only one of the bit is colliding with the another packet bit, so the complete data will get lost. You should aware of that. अगर एक बिट भी हमारी डैमेज हो जाती है, एक बिट भी कोलाइड होती है, तो पूरा का पूरा पैकेट हमारा फ्रेम हमारा ख़राब हो जाएगा। ठीक है? जैसे आप देख सकते हैं जो पहला वाला जो हमारा स्टेशन है उसका एक केवल थोड़ा सा पोर्शन हमारा फ्रेम 1.2 में देखिए थोड़ा सा पोर्शन हमारा टकरा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि उस टाइम पे मतलब केवल थोड़ा सा ही हमारा गड़बड़ हो रहा है, इसकी वजह से हमारा डेटा लॉस हो जा रहा है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो और ये आप देख सकते हैं फ्रेम 1.1 Yes, sir. जी, फ्रेम 1.1 और ये जो लास्ट में फ्रेम 3.2 है, ये आपका इजीली ट्रांसफर हो जा रहा है क्योंकि इसमें कोई भी हिंड्रेंस या हमारा कोई कोलिजन नहीं हो रहा है। ठीक है? बट इन केस ऑफ frame in case of frame 2.2 also and frame 4.2, you can see frame 2.2 में हमारा राइट साइड का पोर्शन और फ्रेम 4.2 में लेफ्ट साइड का पोर्शन, ये दोनों ही हमारे कोलाइड हो रहे हैं। क्लियर? इन दोनों में ही कोलिजन हो रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये हमारे मतलब उसका राइट साइड इसका लेफ्ट साइड हमारा अफेक्ट हो रहा है। ये देखिए इधर वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा होगा, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग, ये वाला जो पोर्शन है इसमें आप देख सकते हैं इस फ्रेम का ये वाला पोर्शन और इसका ये वाला पोर्शन हमारा कोलाइड हो रहा है। ठीक है ना? क्लियर? तो इसको जो हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड कोलिजन ड्यूरेशन, दिस इज कॉल्ड कोलिजन ड्यूरेशन, दिस इज कॉल्ड कोलिजन ड्यूरेशन। जिस पोर्शन में कोलाइड हो रहा है इसको कोलिजन ड्यूरेशन बोलते हैं। मीन्स इस पर्टिकुलर टाइम में हमारा पैकेट कोलाइड कर रहा है। ठीक? सो you need to note that some points about Aloha scheme. आपसे अगर कोई पूछता है व्हाट इज अलोहा, तो these are the points you can define from the Aloha system. Aloha is a random access protocol. First thing is Aloha is a random access protocol. Clear? It was actually designed for WLAN, but it is also applicable for shared medium. मतलब ये डिज़ाइन किया गया था लैन सिस्टम के लिए, वायरलेस लैन सिस्टम के लिए, बट इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर शेयर्ड मीडियम। क्लियर? एंड द थर्ड पॉइंट इज इन दिस मल्टीपल stations can transmit data at the same time and can hence lead to collision and data being garbled. Clear? So वही जो हमने आपको बताया है कि इसमें मल्टीपल स्टेशन एट द सेम टाइम हमारा डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो दो तरीके का है, प्योर एलोहा, स्लॉटेड एलोहा, और ये हमने आपको डायग्राम प्योर लोहा के बारे में बता दिया। ठीक है? इसके बाद हाँ, एलोहा में भी आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे ये हमारे कुछ टर्म्स हैं जो आपको ध्यान रखते हैं। जैसे वनरेलेबल टाइम, वनरेलेबल टाइम क्या होता है प्योर एलोहा के केस में, कि ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज टी माइनस टी एफ आर एंड दिस इज टी प्लस टी एफ आर। ठीक है? टी एफ आर जो कैपिटल टी एफ आर लिखा हुआ है इसको फ्रेम टाइम बोलते हैं। ठीक है? मतलब जो हमारा फ्रेम उस पर्टिकुलर टाइम में ट्रांसमिट हो रहा है, दैट पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड फ्रेम टाइम। क्लियर? दिस इज एग्जैक्टली वी आर हैविंग टू टाइम्स। मीन्स आप देख सकते हैं एक फ्रेम आपका यहाँ से बिगिन हो रहा है, एक फ्रेम आपका यहाँ से बिगिन हो रहा है और एक फ्रेम यहाँ से बिगिन हो रहा है। क्लियर? वी आर हैविंग 3 फ्रेम्स, फ्रेम ए, फ्रेम बी एंड फ्रेम सी। क्लियर? एंड यू कैन सी दैट जब हमारा फ्रेम हमारा क्या बोलते हैं ए का, देखिए आप फ्रेम ए का जो ये पोर्शन है और फ्रेम सी का जो ये पोर्शन है, वो दोनों फ्रेम ए के, एक फ्रेम ए के राइट साइड से कोलाइड हो रहा है, एक फ्रेम ए के लेफ्ट साइड से कोलाइड हो रहा है। तो मीन्स यहाँ पे और यहाँ पे कोलिजन हो रहा है। वी आर हैविंग 2 पॉइंट्स वेयर द कोलिजन अराइजेस। क्लियर? सो हमारे तीनों पैकेट्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा एक का कोलिजन हो रहा है सी के साथ, सी के बिगनिंग के साथ, और यहाँ पे बी का जो एंड हो रहा है, एंड कोलाइड कर रहा है ए के बिगनिंग के साथ। क्लियर? सो
वी हैव कोलिजन्स। क्लियर? सो अगर हमसे हमारे पास देखा जाए जो वनरेलेबल टाइम कैसे निकालेंगे? टोटल कोलिजन टाइम। क्लियर? तो टोटल हमारे पास देखिए यहाँ से हमारा एक फ्रेम स्टार्ट हुआ, एक फ्रेम हमारे पास यहाँ पे जाके जो कोलिजन हो रहा है, कोलिजन मीन्स यहाँ पे कोलिजन हमारा हुआ लास्ट में, यहाँ तक का जो टाइम होगा दिस टाइम, ये टाइम हमारा कैसे निकल जाएगा? दिस इज टी प्लस टी एफ आर एंड दिस इज टी माइनस टी एफ आर। तो टी प्लस टी एफ आर में से टी माइनस टी एफ आर अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा टोटल जो टाइम है वो निकल आएगा, जिसको बोलते हैं वन रिलेबल टाइम। ठीक है, इसको बोलते हैं वन रिलेबल टाइम। तो ये हमारा निकल आएगा, ये देखिए जैसे ये हमारा है लास्ट में टी प्लस टी एफ आर है, तो टी प्लस टी एफ आर, सॉरी दिस इज टी प्लस टी एफ आर माइनस टी माइनस टी एफ आर। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू कैन सी दैट दोनों टी कैंसिल हो जाएंगे और ये जो टी एफ आर है ये इस टी एफ आर के साथ ऐड हो जाएगा। सो टोटल वन रिलेबल टाइम आ जाएगा ट्वाइस ऑफ टी एफ आर। क्लियर? दिस इज कॉल्ड द वन रिलेबल टाइम। इज इट क्लियर? तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जो प्योर लोहा है इसमें वन रिलेबल टाइम कितना होता है, तो आपको बताना है ट्वाइस ऑफ फ्रेम टाइम। क्लियर? फ्रेम ड्यूरेशन टाइम या फ्रेम टाइम। क्लियर? तो दिस इज ट्वाइस ऑफ टी एफ आर। ठीक है, इन केस ऑफ प्योर लोहा सिस्टम। ये समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। है ना? तो आपका अगर प्योर एलोहा की मैं बात करूं तो प्योर एलोहा में जो वनरेबल टाइम होता है दैट इज ट्वाइस ऑफ टी एफ आर। क्लियर? इसके बाद इन सब के डेफिनेशंस आपकी इसमें बुक में रिटन है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। बाकी मैं जो कुछ स्पेसिफिक मैथमेटिकल टर्म्स है वो आपको मैं समझा दे रहा हूँ। इसके बाद आता है स्लॉटेड एलोहा। क्लियर? अभी मैं आपको एफिशिएंसी भी निकाल के बताऊंगा, अभी मैं फिलहाल पहले थोड़ा दोनों को डिस्कस कर लेता हूँ फिर एफिशिएंसी पे आऊँगा। ओके, स्लॉटेड एलोहा क्या होता है? इट वाज डेवलप्ड जस्ट टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ प्योर एलोहा। मींस अभी जो मैं एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ आपसे, प्योर एलोहा में क्या हो रहा था कि हमारे पैकेट्स के कोलाइड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। क्लियर? सो वी जस्ट मूव टू व्हाट द स्लॉटेड एलोहा स्कीम। ठीक, स्लॉटेड एलोहा में क्या होता है कि एग्जैक्टली क्या किया हमने, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए जो हमारे पैकेट्स रैंडमली ट्रांसमिट हो रहे थे, ठीक है, उनको हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट दे दिया। जैसे हमने कहा कि पहला पैकेट हमारा जो है इस टाइम में स्लॉट में हमारा ट्रांसमिट हो रहा है, सेकंड पैकेट अनदर टाइम स्लॉट में ट्रांसमिट हो रहा है, थर्ड पैकेट अनदर टाइम स्लॉट में ट्रांसमिट हो रहा है। तो वी हैव जस्ट डिवाइड द टाइम स्लॉट्स फॉर इस डिफरेंट स्टेशंस। क्लियर? हमने क्या किया, सबको एक एक टाइम स्लॉट दिया कि आपके पास ये टाइम स्लॉट है, आप इसमें पैकेट ट्रांसमिट कर सकते हैं। स्टिल द कोलिजन्स हैपन। क्लियर? अभी देखिएगा, अब उसके बाद ही हमारा कोलिजन होता है। तो इसमें क्या है कि इट वाज डिजाइन जस्ट टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ प्योर एलोहा एज द चांसेस ऑफ कोलिजन इन प्योर एलोहा आर हाई। ऐसा नहीं इसमें कोलिजन नहीं होगा, लेकिन इसमें थोड़ा कोलिजन कम होगा। ठीक है, द टाइम ऑफ द शेयर्ड चैनल इज डिवाइडेड इनटू डिस्क्रीट टाइम इंटरवल्स कॉल्ड स्लॉट्स। वही अभी हमने जो आपको बताया कि जो हमारा टोटल शेयर्ड चैनल है, मान लीजिए हमारे पास जो चैनल है या बैंडविड्थ अवेलेबल है ट्रांसमिशन के लिए, उसको हम क्या करते हैं, डिस्क्रीट टाइम में डिवाइड कर लेते हैं स्लॉट्स में। जैसे मान लीजिए एक कंप्लीट हमारे पास टाइम है, एक कंप्लीट टाइम स्लॉट है फॉर एग्जांपल, जैसे ये हमारा टाइम है, इस टाइम स्लॉट को हमने क्या किया, एक छोटे छोटे टाइम स्लॉट में डिवाइड कर लिया। जैसे सपोज ये हमारा कंप्लीट टी था, दिस इज टाइम टी, तो इसको हमने कर दिया T1, T2, T3, T4 एंड सो ऑन। क्लियर? सो इससे क्या है कि इस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट्स पे हमारे डेटा ट्रांसमिट होंगे। ठीक है ना? फिर भी कोलिजन चांसेस रहते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे कोलिजन होता है उसमें। ठीक है, सो ओके, सो द टाइम ऑफ द सेंडिंग ऑफ डेटा इज अलाउड ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ दीज स्लॉट्स। ये आपको ध्यान रखना है कि जो स्लॉटेड लोहा होता है, इसमें जो डेटा को सेंड करता है स्टेशन,
वो बिगनिंग ऑफ द टाइम स्लॉट करता है। ऐसा नहीं है, अगर मान लीजिए हमने उसको स्टार्टिंग में हमारा 1 सेकेंड स्टार्ट होना है, ठीक है, 1 सेकेंड पे, अगर वो उस समय हमारा डेटा नहीं सेंड कर पाया, इफ अगर वो नहीं सेंड कर पाया, तो फिर उसको क्या, ठीक है, जो उसके बाद जो उसके नेक्स्ट टाइम स्लॉट होगा उसमें आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में अगर आप स्टार्टिंग में डेटा नहीं सेंड कर पाए, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। मतलब आप फिर तुरंत डेटा नहीं भेज सकते, इन बिटवीन द स्लॉट्स नहीं भेज सकते, आपको स्टार्ट ऑफ द स्लॉट ही भेजना है, या एंड ऑफ द स्लॉट भी नहीं भेज सकते। क्लियर? तो जो भी स्लॉट स्टार्ट होगा उसी में आपको डेटा भेजना है। इन बिटवीन द स्लॉट्स यू कांट, द स्टेशन कांट सेंड द डेटा। ठीक है, ये आपका एक स्लॉटेड अलोहा का बहुत ही मेन पॉइंट है कि बिगिनिंग में ही आपका जब स्लॉट बिगिन हो रहा है तभी आपको डेटा भेजना है। इफ स्टेशन मिसेज आउट द अलाउड टाइम, देखिए लिखा है, इफ द स्टेशन मिसेज आउट द अलाउड टाइम इट मस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट स्लॉट, दिस रिड्यूसेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर एक स्टेशन उस पर्टिकुलर अलाउड टाइम में डेटा मिस कर देता है, नहीं भेज पाता है, तो उसको वेट करना होगा नेक्स्ट स्लॉट के लिए। जब उसको नेक्स्ट स्लॉट मिलेगा तो फिर उसके स्टार्टिंग स्लॉट टाइम में उसको डेटा भेजना पड़ेगा। इससे क्या होता है, थोड़ा कोलिजन की प्रोबेबिलिटी घटती है, इसी वजह से कोलिजन होने के चांसेस घटते हैं। क्लियर? सो ये सभी को दिख रहा है? ये डायग्राम इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? हेलो? Yes, sir. Okay, is it okay? You can see that in this particular diagram, this is the slotted Aloha diagram. You can see this is something like that diagram which is previously in pure Aloha. We have discussed in pure Aloha. Okay, you can see that this is the time slot. Clear? This is the time slot, starting time. Clear? And you can see that the packet B have a certain time slot. पैकेट भी आपका कहीं भी कोलाइड नहीं कर रहा है, ना तो एंड से ना स्टार्ट से। ठीक है, स्टार्ट से और एंड से दोनों से ऐसे हमारा पैकेट भी सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो रहा है, अभी कोई कोई कोलिजन नहीं हुआ उसका। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें जो ये पैकेट ए है एंड पैकेट सी है, ये दोनों आपके कोलाइड कर गए। क्यों कोलाइड कर गए? क्योंकि जैसे हमारा मान लीजिए ऐसा होता है कि एक पैकेट ने, एक स्टेशन ने देखा कि एक स्लॉट हमारे पास अवेलेबल है, उसने उस स्लॉट पे डेटा सेंड कर दिया। ठीक है, अब वो डेटा हमारा एंड नहीं हो पाया था, तब तक दूसरे स्टेशन ने भी डेटा डाल दिया। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा एक ही स्लॉट में दो डेटा आ जाता है, दो पैकेट आ जाता है। तो ये उसी तरह की कंडीशन है कि हमारा डेटा कोलाइड कर गया एक सिंगल स्लॉट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा जो वनरेलेबल टाइम होगा, वनरेलेबल टाइम का मतलब होता है जहाँ हमारा कोलिजन हैपन हो रहा है, वो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन जहाँ पे कोलिजन हैपन हो रहा है। ठीक है, और ये जो पूरा टाइम होता है इसको ट्रांसमिशन टाइम बोलते हैं। ट्रांसमिशन टाइम का मतलब होता है कि हमारा डेटा कितने देर में, मतलब पूरा जो चैनल एक्सेस हो रहा है उसमें कितने देर में हमारा डेटा गया या लौट के आया, तो पूरा कंप्लीट टाइम ट्रांसमिशन टाइम कहलाता है। जितनी देर डेटा डेटा हमारा चाहे कोलाइड होने के बाद लौट के आए चाहे जैसे आए, तो मतलब डेटा हमारा जो चैनल में एक्सेस करता रहता है जितने भी टाइम के लिए, उसको हम ट्रांसमिशन टाइम बोलते हैं। ठीक है, और वनरेलेबल टाइम वो होता है जो जिसमें हमारा डेटा कोलाइड कर जाता है, जिसमें हमारा डेटा का कोलिजन होता है, दैट इज कॉल्ड वनरेलेबल टाइम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज टी माइनस टी एफ आर, लास्ट लेफ्ट हैंड साइड में, दिस इन बिटवीन देयर इज ए टी टाइम and the last is t plus tfr. Clear? So you can see that the vulnerable time is there, t and t plus tfr. So if you minus it from this, that is if you minus this term with this term only. Clear? So you will get what? T plus tfr minus t. So t is t cancel. Clear? And t and t is cancelled, so you will get only tfr. Clear? So we can say the vulnerable time for slotted aloha is
TFR, that is frame duration time. Clear? Is it clear to all of you? And in case of pure Aloha, it was what? Twice of TFR. Clear? But in case of slotted Aloha, it is TFR. ठीक है? दिस इज द वनरेबल टाइम. तो आप देख सकते हैं कि जो कोलिजन टाइम है वो भी हमारा घट गया. वहाँ पे कोलिजन टाइम डबल था, यहाँ पे कोलिजन टाइम हमारा केवल क्या है? TFR है. तो टाइम ऑफ कोलिजन इज ऑल्सो रिड्यूस. ये किस वजह से हुआ है? कि यहाँ हमारे पास स्लॉट्स हैं. ठीक है, तो अगर कहीं कोलिजन हो रहा है तो पर्टिकुलर स्लॉट्स में हो रहा है. ऐसा नहीं कि रैंडमली हमारा पूरा का पूरा टाइम ड्यूरेशन कोलाइड कर जा रहा है. कई सारे पैकेट्स एट ए टाइम कोलाइड कर जा रहे हैं. यहाँ पे संभावना कई सारे पैकेट की कोलाइड होने की नहीं होती है. यहाँ कुछ रेस्पेक्टिव पैकेट्स की कोलाइड होने की होती है ज़्यादा से ज़्यादा. ठीक है ना? इसीलिए फ्रेम ड्यूरेशन भी हमारा मतलब वल्नरेबल टाइम हमारा कम हो जाता है. ठीक है. Now these are the some terms you need to know that, जो भी हमने आपको बताया भी था. वनरेबल टाइम आपका जो होता है वो फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम होता है. मतलब जिसमें कह सकते हैं कि एक तरह से कह सकते हो कोलिजन वाला पोर्शन जो हमारा अकर हो रहा है. ठीक है, जैसे मान लीजिए एक फ्रेम ट्रांसमिट हुआ, दूसरा फ्रेम ट्रांसमिट हुआ, जहाँ पे वो एक दूसरे से कोलाइड कर गए. ठीक है. एंड नाउ द अनदर टर्म इज थ्रूपुट. थ्रूपुट इज व्हाट? थ्रूपुट का मतलब होता है एफिशिएंसी. यहाँ पे थ्रूपुट जो टर्म है दैट इज एफिशिएंसी. क्लियर? तो हमें ये चीज़ समझना है कि एफिशिएंसी को कैसे हम फाइंड करेंगे दोनों के लिए, प्योर एलोहा के लिए और स्लॉटेड एलोहा के लिए. एग्जाम में पूछा भी जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम. ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारा भी टर्म आपको दिख रहा होगा, डायरेक्टली लिखा हुआ है, बट वी विल कैलकुलेट इट. क्लियर? सो इसको हम थोड़ा फाइंड करने की कोशिश करेंगे. दिस इज द डिफरेंसेस ऑफ. तो मैं थोड़ा आपको कुछ कैलकुलेशन बता रहा हूँ, जरा इसको देखिएगा. एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं प्योर एलोहा की. ठीक है, so I'm just do some mathematics. Okay, so if we find the efficiency of pure Aloha, for example, मान लीजिए हमें pure Aloha की थ्रूपुट निकालनी है, तो how can we find ईटा? ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं एफिशिएंसी को. ईटा इज इक्वल टू होता है G इंटू ई की पावर माइनस 2G. व्हाट इज G? What is G? Okay, can anyone explain what is G? G is exactly the packets which are transmitting. Clear? G is exactly the packets or data which are transmitting. That is what G. Clear? So here why we are using minus 2G here? Minus 2G is what? माइनस 2G ये मैंने इसलिए ये रिप्रेजेंट किया है क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो फ्रेम ड्यूरेशन है, वी आर हैविंग द फ्रेम ड्यूरेशन, एंड द फ्रेम ड्यूरेशन इज व्हाट? वी आर हैविंग द फ्रेम ड्यूरेशन. Okay, so we are having the frame duration that is twice of TFR. Clear? We are having the frame duration twice of TFR. So just because of this particular vulnerable time period, that is twice of TFR, we are having twice of G. Clear? What is this twice of G? अगर हम बात करेंगे स्लॉटेड एलोहा की, तो स्लॉटेड में क्या हो जाएगा? दिस इज फॉर प्योर एलोहा. स्लॉटेड एलोहा में क्या होगा? ये माइनस 2G की जगह पे केवल माइनस G आएगा. अभी आप देखिएगा जब मैं एफिशिएंसी निकालूंगा तो वहाँ पे माइनस G आएगा. क्लियर? सो नाउ व्हाट वी कैन डू, again I am writing eta is equal to G into e की power minus 2G. Clear? Now how we can find that? This is only the efficiency of what? Pure Aloha. But how we can find the maximum efficiency of pure Aloha? So we apply the maxima minima concept over here. Clear? So we all are aware with the maxima minima concept. किसी का अगर आपको निकालना हो किसी भी टर्म में मैक्सिमम एफिशिएंसी, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, या हमारा मैक्सिमम हमारा रिस्पांस कितना है, तो हम मैक्सिमम मिनिमा से कैसे फाइंड करते हैं? वी जस्ट डेरिवेट इज
विथ रेस्पेक्ट टू द वेरिएबल टर्म्स, ठीक। तो वेरिएबल हमारे पास g है, तो हम क्या करेंगे, इस एफिशिएंसी को डेरिवेट करेंगे फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी